Today we are going to study what is remainder theorem. This is very important part of this chapter. Before we come to know about remainder theorem, it is very important to know how to divide two polynomials. So first of all, we'll learn that, and after that, we'll go for the remainder theorem. Divide px by gx. Here we have a polynomial 3x square plus x minus 1 and second polynomial that is x plus 1. We have to divide px by gx. The very first step for division is जो हमारे डिग्रीज है वेरिएबल की they must be arranged in ascending order. Already इस क्वेश्चन में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अवेलेबल है. That's why it's not required to arrange them. We'll make a column for rough work. Now let's start dividing. First of all, this is our dividend. That's why it is written inside the bracket and outside the divisor, that is x plus 1. The very first step is the first term of dividend and the very first term of the divisor will be written in rough work side and we'll divide both of them. When we'll divide it, here the degree is 1, it will be cut by its 1 degree and what we'll get as our answer 3x. We'll write 3x on our quotient part here 3x. Now we will multiply 3x by x and 3x by 1 and we'll simply write here 3x into x, 3x square, 3x into 1, 3x. Now here the sign of 3x square is also positive and sign of 3x is also positive. So we'll change their signs into minus and minus. Since here it is of plus and now it has changed to minus. ऊपर वाले का तो हमारा plus 3x square है और नीचे वाले का minus 3x square. That's why वो दोनों कट हो जाएंगे 0 and minus 3x plus x that is equals to minus 2x और हम यहाँ से अपना remaining portion note down कर लेंगे. दूसरे स्टेप में भी हमें सेम यही प्रोसीजर करना है. minus 2x को and x को डिवाइड करेंगे हम रफ वर्क में विद साइन. x will be cut by x like this. What we'll get? minus 2. In question again we'll write minus 2. minus 2 को हम multiply करेंगे x से and then we'll multiply minus 2 by 1. What we'll get? minus 2 into x minus 2x minus 2 into 1 minus 2. अब यहाँ पे माइनस का साइन था और यहाँ पे भी माइनस का है. इनके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस प्लस minus 2x plus 2x कट हो जाएंगे and what will be the remainder here? plus 2 minus 1 which is equals to plus 1. हम कब तक डिवाइड करते रहते हैं? जब तक हमारे डिवाइजर की जो डिग्री है here the degree is 1 और रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पे हमारी 0 आ गई बिकॉज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? 0. जब तक हमारे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं आएगी वी विल कीप ऑन डिवाइडिंग. यहाँ पे हमारा आंसर 3x minus 2 आया है and remainder is 1. We can express this expression in this form because of this rule. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Dividend हमारा 3x square plus x minus 1 है equals to divisor is x plus 1. Quotient is 3x minus 2 and the remainder here is 1. So in this way now we have learned how to divide two polynomials. Now it's time for understanding the remainder theorem. Here is the statement for the remainder theorem. Let px be any polynomial of degree greater than or equals to 1. हमारे को polynomial let करना है px. उस px polynomial की डिग्री जो होगी वो या तो 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी. Let a be any real number. a कोई भी रियल नंबर है. px is divided by linear polynomial x minus a. अगर हम px को डिवाइड करें एक लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोला हमने यहाँ पे? क्योंकि x की डिग्री हमारे पास 1 है तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो होगा pa. ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम बोलता है. लेट्स सी द प्रूफ ऑफ इट. हम प्रूफ से क्लियर हो जाएगा दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. लेट px बी एनी पॉलिनोमियल. px हमने एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है. सपोज
When px is divided by x minus a, px को हमने x minus a से डिवाइड किया, क्वेश्चन हमने मान लिया qx, जनरल बातें कर रहे हैं हम इसलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन को रखा qx और रिमाइंडर हमारा rx, बिकॉज यहाँ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमने अभी जो पीछे एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें देखा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा px है, x माइनस है हमारा डिवाइजर है, qx हमने क्वेश्चन लेट किया है, rx हमारा रिमाइंडर है। Since the degree of x minus a is 1, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री x minus a की क्या है 1, implies degree of rx is less than the degree of x minus a। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास rx है, रिमाइंडर हमने पीछे डिवीजन में देखा था, हम कब तक रिमाइंडर मानते हैं किसी भी डिवीजन में, जब तक हमारी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं होगी। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर हेयर इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस है, x माइनस ए की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी 0। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x rx इज इक्वल्स टू r, तो r एक हमारे पास कांस्टेंट हमें मिल गया। विल रिप्लेस, अब यहाँ पे हम rx की जगह r लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया जो हमारी rx है उसकी डिग्री 0 है, तो वो एक कांस्टेंट है। इन दिस वे वी कैन राइट हियर। इन पर्टिकुलर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x इक्वल a मीन्स हमने x माइनस a यहाँ देखा था, अगर हम x माइनस a इक्वल 0 रख दें तो इस इक्वेशन के हिसाब से x हमारा a आ जाएगा। हम इस a को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, p a माइनस a q a प्लस r। a माइनस a 0 है, 0 को हम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, we'll get here 0 plus r which is equals to r। तो इस तरीके से हमने देख लिया that pa is equals to r। हमने यही स्टेटमेंट बोली थी, जब हमारी ये सब टर्म्स पूरी होंगी then the remainder is pa। तो हमने इस चीजों से क्या समझा, that अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, जो x की वैल्यू आएगी जब हम उस वैल्यू को px मीन्स हमारे पॉलिनोमियल में रख देंगे, जो हमारा आंसर आएगा सॉल्व करके दैट विल बी द रिमाइंडर। आपको एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमारा डिवाइड करके कंप्लीट रिमाइंडर 1 आया था, अब हम ये 1 ही लाएंगे जिससे हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा, बट नॉट बाय डिवीजन, बाय रिमाइंडर थ्योरम। वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर px, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। हमें डिवाइड करना है px को gx से, सेम वही हमारे पॉलिनोमियल से, px is 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड gx is equals to x plus 1। अब हम ये क्वेश्चन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, सो लेट्स सी। x plus 1 is equals to 0, हम अपने डिवाइजर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस 1, अब इस माइनस 1 को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे x के जगह पे, माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1। 3 इंटू 1 हमने क्यों लिखा, बिकॉज माइनस 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 1 प्लस माइनस इज माइनस एंड माइनस 1। 3 1s are 3, minus 1 and minus 1 is minus 2। what is the answer 1। जब हमने कंप्लीट डिवीजन किया था तब भी हमारा आंसर 1 आया, और सिंपली जब हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया तब भी हमारा आंसर 1 आया। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px, जो रिमाइंडर हमें मिला था जब हमने px इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, वो एग्जैक्टली सेम है एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जब हमने इसका 0 निकाला मीन्स माइनस 1 जो हमारी वैल्यू है, जब हमने वो px में पुट की तो भी हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज सेम। सो दिस इज व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम इज। In next part we'll do the questions related to remainder theorem. If you have any doubt you can ask your queries in comment section.